Hello students, today we take one problem, that is find mean, mode and median. Means we have to calculate all central tendencies, that is mean, mode and median, and the problem in which class intervals are not continuous. Okay, you see the class intervals in this problem. The class intervals are not continuous. Means here 5 to 15, then here 15 to 24. Means this upper limit is not equal to lower limit of next class. Okay, so first we find the mean. So to find the mean, देखो मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमारे क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस रहने दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं। ओके, तो मीन निकालने के लिए आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे क्लास इंटरवल आपको रखना है। तो वी जस्ट फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, सो सी these are class intervals. Frequency. So here 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, and 55 to 64. Frequency 6, 11, 8, 20, 25 and 8. Total is 8. So here we have to find mean by direct method. Okay. So first we find class marks of each class interval. So just here find class mark means xi, and this frequency fi. So first we find the class mark. So we know that class mark means upper limit plus lower limit divided by 2. Upper limit plus lower limit divided by 2. तो यहाँ पे देखिए 5 plus 14 that is 19. 19 divided by 2 that is 9.5. Okay, 9.5. Again 15 to 24 means 24 plus 15, that is 39. 39 divided by 2, so it is 19. 39 divided by 2, that is 19.5. So likewise here class intervals are, class marks are 29.5, 39.5, 49.5 and 59.5. So if the class size is same, here देखो class size सभी की 10 है, 10 सॉरी 9 है, तो यहाँ पे हमको सिंपल ऐड करना है। ओके, तो दिस इज अवर क्लास मार्क्स। नाउ अब हमें क्लास मार्क मिल गया, तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, fi xi निकालना है। So we just find here fi xi. Fi xi means fi और xi का प्रोडक्ट। ओके, तो 9.5 into 6 ये दोनों का प्रोडक्ट, so 9.5 into 6, so 6 into 5 30, carry 3, so here 57.0. Now 11 into 19.5, so here 55, carry 5, 4, 10, so here 21, 214.5, again 8 into 29.5, carry 4, 6, 7, 236.0, then 20, so here
790. Now 225 carry 22, 125, 147, so 100 means 123, 1237.5. Here 595.3. Okay, so this is your 5XR. ये एक बार हम फिर से टैली कर लेंगे. 236. Okay, now we take the EFI-XR, that is 10, 5 plus 1, 8 plus 12 plus 6, 18, 25, 30. Carry 3, 8, 9, 12, 21, 24, carry 3, 5, 7, 14, 16, 21, carry 2. So it is 3130. 3130. That is summation of FI-XR. We know the direct method. The mean by direct method, mean is equal to x bar is equal to summation FI-XI divided by summation FI. Okay, so just substitute the value 3130.0 divided by summation FI. This is summation FI is 80. So this 0, 7, so 39.1. 39.1 is the mean. तो mean निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी डाटा दिया है उससे हमने क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकाला. क्लास मार्क्स निकालने के बाद FI और XI का प्रोडक्ट निकाला और पूरे FI XI की हम सम करने के बाद फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया हमने समेशन FI XI और समेशन FI उसको डिवाइड किया, फिर आ गया मीन 59.1. सो दिस इज द मीन. तो I write here mean. So mean is 39.1. Okay. Now we find mode. तो मोड और मीडियन, अब ध्यान दीजिए, मोड और मीडियन अगर निकालना है और क्लास इंटरवल आपको कंटिन्यूअस नहीं है तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस बनाना है. ओके, तो ये कैसे बनाएंगे, सीधे हियर. तो फर्स्ट क्लास इंटरवल्स, then hit frequency, five to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 54, 55 to 64. Frequency 6, 11, 8, 20, 25, 10. Total is 80. अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो क्लास इंटरवल दी है उनको हमें कंटिन्यूअस करना है. तो कंटिन्यूअस कोई भी क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए. सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्लास का अपर लिमिट देखना है, दूसरे क्लास की लोअर लिमिट देखना है, उसमें कितना डिफरेंस है. अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ये आपको दोनों ऑब्जर्व करना है. तो देन वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम. सो हियर डिफरेंस इज 1. सी 15 minus 14, 25 minus 24, 35 minus 34. तो ये डिफरेंस आपको देखना है. डिफरेंस देखने के बाद उसको आपको डिवाइड
इंटरवल लिखेंगे। तो ये हो गया आपके कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। और ये बात में कंसीडर करना है आपको, ये कंसीडर करना है। तो देखिए अभी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हमने लिखा कैसे, तो जो डिफरेंस आया 0.5, डिफरेंस किसका, ये दोनों का डिफरेंस। ओके, तो इनमें से फर्स्ट जो लोअर लिमिट होगी उसमें से ये डिफरेंस हमको माइनस करना है और अपर लिमिट से प्लस करना है। तो यहाँ भी इसको अगर माइनस किया तो ये बन जाएगा 4.5 और ये होगी 14.5। लोअर लिमिट से माइनस, अपर लिमिट से प्लस। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा 14.5, 24.5, फिर 24.5, 34.5, फिर आ जाएगा इधर 34.5, 44.5, फिर 54.5, नेक्स्ट आएगा 54.5, 64.5। तो अब आप देखेंगे तो क्लास इंटरवल आपको कंटिन्यूअस मिलेंगे। सी 14.5 यहाँ पे 45, 24.5, 24। तो दीज क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया। तो जैसे पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, दूसरे क्लास की लोअर लिमिट, ओके, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, उसका आधा करना है। आधा करने के बाद जो लोअर लिमिट होगी उससे वो डिफरेंस, वो जो आधा पार्ट है 0.5 वो माइनस करना है और अपर लिमिट से प्लस करना है। हर क्लास इंटरवल को आप ऐसे ही करना है तो आपको कंटिन्यूअस क्लास में इंटरवल्स मिल जाएंगे। ओके, अब निकालेंगे हम मोड। तो सबसे पहले मोड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड मॉडल क्लास। हमें चाहिए मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास किसको कहेंगे, तो मॉडल क्लास मतलब क्या हुआ कि जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। द क्लास इंटरवल व्हिच हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, दैट इज 25। सो दैट क्लास, अब ये क्लास इंटरवल आपको कंसीडर नहीं करना है, ये लेना है। तो दिस क्लास is model class. Okay, so this is model class. तो model class आपको मिल गया 44.5 to 54.5। तो जो आंसर आएगा आपको इसी क्लास के बीच आएगा। ओके, अब देखिए व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोड। सबसे पहले हम मोड का फार्मूला लिखेंगे, L प्लस f1 minus f0 divide by 2f1 minus f0 minus f2 into h। ओके, अब हमें पता है कि L क्या है, L is the lower limit of model class, L is lower limit of model class, that is 44.5। then h is the class size of model class। तो यहां पे आप क्लास साइज निकालो, कितने आएंगे, इट इज 10। ओके, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। तो यहां पे आप क्लास साइज निकाल सकते हैं, सभी की 10 ही है, क्योंकि हमें यही कंसीडर करना है। नेक्स्ट है हमारा f0, f1 और f2। तो जैसे मैंने बताया कि जो मॉडल क्लास है उसको बीच में रख के आपको सिंपल सीरियल नंबर देना है, f0, f1 और f2। तो f0 क्या है, देखो f0 is 20, f1 is 25 और f2 is 10। तो f0 is the frequency of class preceding of model class। जो मॉडल क्लास होगा उसके पहले जो क्लास आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 20। f1 is the frequency of model class, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास के नेक्स्ट जो क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज f2। तो ये सभी टर्म्स हमें मिल गए। अब हम निकालेंगे मॉड। सो मॉड
equal to, just substitute the value L here, 44.5 plus F1, 25 minus F0, 20 divide by 2 into F1, 25 minus 20 minus F2, 10 into H, 10. ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे. सो हियर 44.5 plus 20 here minus 5, so 50. 2 into 25, 50 minus 20, that is 30. 30 minus 10, 20 into 10, that is 10. So divide it. So 44.5 plus 5 upon 2, that is 2.5. So we get 5 into 5 plus 5, 10. Carry 1, 7. So here 47 is the mod. Okay, 47 is the mod. So write here mod 47. तो देखो मॉड निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है उसको हमने कंटीन्यूअस बनाया. कंटीन्यूअस कैसे बनाया, ये दोनों का डिफरेंस देखा हमने, उसका आधा किया, फिर लोअर लिमिट से वो आधा पार्ट माइनस किया, अपर लिमिट में वो प्लस किया. तो ये हमें कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल मिल गए. फिर हमने मॉडल क्लास चूज किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी में देखो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो दिस इज मॉडल क्लास. फिर हमने यल मतलब लोअर लिमिट निकाला मॉडल क्लास की, यह इज द क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास. F0 मॉडल क्लास के पहले का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी. हमने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज और मॉड आ गया 47. सो दिस इज द मॉड. नाउ वी कैलकुलेट मीडियन. तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दिए हैं उनको हमें कंटीन्यूअस बनाना है. यहाँ तो एक चीज ध्यान में रखना है, मीन के लिए हमें एज इट इज रखना है क्लास इंटरवल. मोड और मीडियन आपको देखना है कंटीन्यूअस है या नहीं. अगर नहीं है तो इसको कंटिन्यू करना. ओके, तो यहाँ पे हम मीडियन निकालेंगे अभी. तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालने के लिए चाहिए मीडियन क्लास. अब इसमें मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको सबसे पहले n/2 निकालना है. अब n/2 मतलब जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिवाइड बाय 2 करना है. सो टोटल फ्रीक्वेंसी 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज 40. अब आपको सबसे पहले ये निकालने के बाद हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF. ओके, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आपको पता है मैंने कि पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखना है. वो भी निकालने के लिए आपको सबसे पहला है क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में के लिए देखना है. कभी-कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है तो पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखना है आपको. सो हियर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करना है. तो हियर आएगा 17, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो 25, फिर इसको ऐड कर दो 45, फिर इसको ऐड कर दो इट इज 70, और फिर नेक्स्ट ऐड कर दो 8. ओके, तो ये हो गई हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये कैसे निकाला हमने, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रख के नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड किया, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड किया, इसे कंटीन्यूअस ऐड करना है आपको. और एक बात ध्यान में रखना है, लास्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी. मतलब ये जो लास्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी जो टोटल होगी फ्रीक्वेंसी उसके बराबर आनी चाहिए, तो ही आपका ये जो एडिशन है बराबर आएगा. ये समझ लें. ओके, सो दिस इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब निकालेंगे हम मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 हमने निकाल दिया 40. अब आपको मीडियन क्लास की डेफिनेशन है द क्लास whose cumulative frequency is
ग्रेटेस्ट नियरेस्ट टू n अपॉन 2, ग्रेटेस्ट नियरेस्ट टू n अपॉन 2। इसका मतलब है कि ऐसा क्लास जिसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n अपॉन 2 से नियरेस्ट ग्रेटर है, यानी इससे ज्यादा है लेकिन नजदीकी है, दैट क्लास इज कॉल्ड मीडियन क्लास। तो यहाँ पे देखो 40 है, तो 40 से ज्यादा और नियरेस्ट कौन सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व कीजिए, दैट इज 45। सो दिस क्लास इज मीडियन क्लास। ओके, सो दिस इज योर मीडियन क्लास। तो मीडियम क्लास कौन सा हो गया अपना 34.5 to 44.5। ओके, दिस इज योर मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास आपको पता चल गया कि ऐसा क्लास जिसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटेस्ट नियरेस्ट टू n अपॉन 2। जैसे 40 है, 40 के नजदीक कौन है 45। ओके, ये सबसे ज्यादा हो गया तो मीडियम क्लास मिलेगा। अब हमारा फार्मूला है मीडियन क्लास। तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस n by 2 माइनस CFP डिवाइड FM इनटू h। तो यहाँ पे n इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 34.5। देन n upon 2 here 40, then h is the class range of median class 10, then CFP, what is CFP? Cumulative frequency of the class preceding the median class, cumulative frequency of the class preceding of median class, मतलब जो मीडियन क्लास है उसके पहले की क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास ये है तो उसका पहला जो क्लास आएगा ये उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव। तो व्हाट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 25। दिस इज CFP। ओके, नाउ FM is equal to, FM is frequency of median class, frequency of median class। तो जो मीडियन क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 20। Now we substitute the values. Okay, so median is equal to n is 34.5 plus n upon 2 40 minus CFP 25 divided by FM 20 into h 10. Okay, so just calculate here 34.5 plus 40 minus 25, that is 15, or this 2, 15 divided by 2. So here 34.5 plus 7.5, so it is 34.5 plus 7.5 is 42. So median is 42. Okay, so here median is 42. So this is the solution of this problem. अब देखो हमने तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज निकाल दिया, मीन, मोड और मीडियन। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? सो मीन मतलब क्या हुआ कि ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका जो एवरेज है दैट इज 39.1। मतलब सपोज ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो जनरली 39.5 सभी स्टूडेंट को मार्क मिले, इसका मतलब ये हुआ दैट इज एवरेज। मोड का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा मार्क। मोड मतलब क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब सभी स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा मार्क कौन से? 47। सभी स्टूडेंट जितने भी 80 स्टूडेंट है सपोज ये, तो 80 स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कितने मार्क मिले हैं? 47, दैट इज मोड। मीडियन मतलब क्या है कि 42 ऐसे एक मार्क है 42, उससे 50% स्टूडेंट ने 42 के नीचे मार्क लिए थे और 50% स्टूडेंट ने 42 एंड 42 से ज्यादा मार्क लिया है। दिस इज मिडल वैल्यू। मीडियन मींस मिडल वैल्यू। ओके, दैट इज द कंक्लूजन। सो मीन
क्या हुआ, सभी डाटा का एवरेज, एवरेज मतलब सभी को नियरेस्ट मार्क मिले 39.1 लाइक दिस। मोड का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कितने मार्क मिले 47, दैट इज 47 मार्क की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मीडियम का मतलब है 42 आया है हमें, तो 42 से कम 50% स्टूडेंट ने मार्क किया और 42 से ज्यादा 50% स्टूडेंट ने मार्क किया। सो दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, अब देखिए हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें मीन आ गई 39.1, मोड आया 47 और मीडियन आ गई 42। नाउ किसी प्रॉब्लम में अगर हम तीनों कैलकुलेट करते हैं तो देयर इज वन इंपिरिकल रिलेशन। इंपिरिकल रिलेशन मतलब ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव हुआ है कि इन तीनों में मीन मोड मीडियन में एक रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड इंपिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। तो व्हाट इज दैट रिलेशन? सो रिलेशन इज, सी हियर, 3 median is equal to mode plus 2 mean. So this is the empirical relation between mean, mode and median. अगर किसी प्रॉब्लम का मीन और मोड निकालते हैं तो आप इस फॉर्मूले से मीडियन निकाल सकते हैं, मोड और मीडियन निकालते हो और इस फार्मूले से आप मीन निकाल सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल रिलेशन, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज गिव्स रिलेशन बिटवीन मीडियन, मोड एंड मीन। सो वी हियर वेरीफाइड सम रिलेशन हियर। सो फर्स्ट वी टेक LHS 3 मीडियन। नाउ सी एम्पिरिकल मतलब आपको ऐसा परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा कि ये साइड और इक्वल टू ये साइड है, ओके, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल, बिकॉज़ इट इज ऑब्जर्वेशंस थ्रू ये रिलेशन बनाया गया है। तो 3 मिलियन, सो हियर मिलियन इज 42, सो 3 into 42, 3 into 2 6, 3 into 12, so that is 126. Now we take RHS. So mode plus 2 mean. Now see, mode is 47 plus 2 into mean. Mean is 39.1. So it is 47 plus 2, 9 into 2 18, carry 1, that is 78.2. Now add this 125.2. Now see, LHS, when we observe here, LHS and RHS, it is 126 and it is 125.2. Means it is approximately nearest. Okay, so ये थोड़ा सा नजदीकी आता है, कभी कभी आता है परफेक्ट, कभी कभी नहीं आता। सो इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल रिलेशन। और किसी प्रॉब्लम में, अगर किसी प्रॉब्लम में आप जब तीनों निकालते हो, मीन इक्वल टू मोड और इक्वल टू मीडियन, तो किसी प्रॉब्लम में अगर आपने मीन, मोड, मीडियन निकाल दिया तो व्हेन दिस all three central tendencies are equal, mean, mode and median, then that distribution is called symmetric distribution. That distribution is called symmetric distribution. Okay, so just remember it कि जब आप mean, mode, median निकालेंगे और तीनों इक्वल आते हैं तो that distribution is symmetric distribution. Okay, so this is all about these three central tendencies, mean, mode and median. Okay, thank you.